Assalamu alaikum. We are back. First of all, let me introduce. My name is Dastagir Malik. I am here once again, निशाम भाई के बेहतरीन किस्म के चैनल के साथ. And today, again, we are going to go again with one thing, entrepreneurship, especially for women. So we have an amazing guest with us, Rabia Dastagir. I'm just going to add her as well. And I hope, Rabia, you can hear me now. Yes, I can. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, and best part is I can hear you now as well. Perfect. First of all, Rabia, thank you so much for joining. Uh, I had a pleasure of e-meeting Rabia last evening from Pakistan and morning in the Canada to meet Anwar Bhai. We had a last session with him. So first thing first, the reason of actually requesting Rabia to come on live was because she is a female entrepreneur. She's worked with good brands. She is herself an artist. Uh, and I am also always of an opinion that uh, you guys can understand, as females, you can understand from the horse's mouth, from when a female is telling you कि क्या चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए जरूरी नहीं है, किन चीजों को फॉलो करें, किनको ना करें. So Rabia, thank you so much for joining, first of all, and a humble request that you introduce yourself because that's the best thing. Sure. Thank you, Mudassir Bhai, for having me. And congratulations, आप बहुत ही अच्छा show कर रहे हैं. I think our youth in Pakistan really needs that inspiration and a little bit of guidance on how they can venture into the global market space. So I'm Rabia Dastagir. मैंने fashion design किया हुआ है Pakistan Institute of Fashion Design से कोई 15-16 साल पहले. And it was a very extensive French degree जिसमें हम बहुत रोते होते थे कि किस चीज़ में फंस गए हैं, कुछ glamour नहीं था. We ended up sewing and draping and textile, काफी कुछ समझ के, but now I see that as a blessing because all of that was very helpful for me here when I moved to Canada. So Pakistan mein my journey was around 8 years after graduating, जिसमें I was working for retail brands. आपने Crossroads का नाम सुना होगा, Breakout का नाम सुना होगा. Yep. So I was managing director, design director for both of those brands. So my interest was always in the retail side, which is more business, numbers, corporate expansion, franchising. Or when I moved to Canada, मैं corporate uniform side पे I ventured in, which is basically. अच्छा. So North America is very different. हम लोगों को जब हम पाकिस्तान से आते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा cultural shock मिलता है because यहाँ के लोगों का उठना, बैठना, खाना, पीना सब कुछ different है. The mindset is very corporate, very consumer, very big picture, numbers. And आपकी जो work life है, आपकी जो business life है, the 9 to 5 hours of your life, they dominate your lifestyle. So अगर आप notice करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा brands की functionality different है, कपड़े पहनने का तरीका different है, weather बहुत different है. So I had to do like a 180-degree turn and start from start कि यहाँ के हमारे लोगों की requirements क्या हैं, उनको बाहर निकलना होता है, they're very outdoors, ये skiing करते हैं, इनकी vacation का बहुत different है. So बहुत ज़्यादा learning, but I think I was mashallah, alhamdulillah, very lucky that I got into an industry which had the right potential. मैंने फिर काफी bigger, high profile clients like Apple, Microsoft, Tesla, T-Mobile, Verizon, इनके यूनिफॉर्म प्रोजेक्ट्स पे काम किया. और हमने तो इनके नाम भी नहीं सुने. बिल्कुल, मुझे यही लग रहा था. अब मसला ये है कि हमारा वो बच्चा या वो अब हम जेंडर स्पेसिफिकेशन पे नहीं जाते, वो बच्चा जो दीर में, सवाबी में, या जो बच्चा इस टाइम कहीं और आउटस्कर्ट्स में बैठा हुआ है, जिसके पास एक्सेस टू इंटरनेट है मगर बड़ी लिमिटेड है, वो कुछ करना भी चाहता है. ठीक है, मुझे पहले तो ये बताए ना कि अब ये कैसे हुआ. राबिया ने कोयटा में थी, वहां से आला तालीम के लिए कहीं और गई और फिर उसके बाद वो कनाडा में सेटल हुई, वर्किंग विद बिग ब्रांड्स. भाई व्हाट स्टार्टेड यू, और क्यों तुम्हें लगता था कि तुम जाके ये चीजें कंकर कर सकती हो? तुम तो लड़की हो, तुम तो नहीं कर सकती हो. नहीं, आप सही कह रहे हैं. सो कोयटा तक जब तक मेरा जर्नी था तब तक मुझे लगता था आई नीड टू डू मोर.
आई नीड टू गेट आउट ऑफ Okay. और बहुत पेरेंट्स से लड़ाई झगड़ा करके लाहौर मूव हुई कि A-levels वहां से करना है, कोयटा में नहीं रहना, क्योंकि बहुत कम लिमिटेड ऑप्शंस थी ना करियर की विद इन कोयटा, यूनिवर्सिटीज 2-3 थी, तो वहां तो जंग टाइप माहौल था, और वहां से निकले लाहौर में आए तो टू बी ऑनेस्ट आई वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स्ड इंडिविजुअल व्हेन आई जॉइंड एक लाहौर की कॉलेज जिसमें बहुत डिफरेंट माहौल है, मेरे लिए बहुत डिफरेंट माहौल था, ठीक है। और कोयटा में मुझे लगता था कि मैं आई एम वन ऑफ द सबसे नॉलेजेबल बड़ी जी, कपड़े भी पहनने आते हैं, बात भी करनी आती है, अपने आप को प्रेजेंट भी करना आता है, बट लाहौर आके शुरू में मुझे लगा कि कल्चरल शॉक लगा विद इन फ्रॉम वन सिटी टू द अदर, लेकिन वहां पे भी करती रही। फिर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन में जाके एक और किस्म का कल्चरल शॉक लगा, लेकिन आई थिंक one thing that was consistent with me and then when I came to North America was कि I was open to learning. मैं कभी भी इस माइंडसेट के साथ नहीं गई कि मुझे सब कुछ पता है, and was one advice that a really dear friend of mine when I moved to Canada उन्होंने मुझे दी कि राबिया तुम्हें कोई पर्सनली नहीं जानता, अगर तुम्हें कोई क्रिटिसाइज कर रहा है या तुम्हें कोई सजेशन दे रहा है, यहां तक कि अगर तुम्हारी किसी इंग्लिश के लफ्ज की प्रोनाउंसिएशन ठीक करा रहा है, get out of your Pakistani mindset. It's not a personal attack. Learn from it. Do not take criticism to your heart. We're nobodies. And to be honest, that was such a I would say important advice, because हम लोग के तो religion में है, हमें कुरान में कहते हैं कि आपको नहीं पता, और हम जब इस माइंडसेट के साथ जाते हैं ना, और ये पाकिस्तानियों का मसला, हमारा ये मसला है, हम अपने घर में हाउस होल्ड में अपने माँ बाप के सामने भी डिफेंसिव प्ले करते हैं कि नहीं जी हमने तो किया था, या हाँ हाँ आई नो आई एम डूइंग इट। वी नीड टू समटाइम्स accept that okay we don't know and we need to learn and ask questions, and I think that has been my biggest I would say success story, the strength, that's your strength. Yeah, I would say that did not let me fall behind. मैंने कभी कोई चीज पर्सनली नहीं ली, मुझे यहाँ तक ऐसे मतलब नॉर्थ अमेरिका लाइक आई सेड कल्चर इज सो डिफरेंट, जो हम यहाँ पे जो मेरे कॉलीग्स स्कूल में एक्टिविटीज करते हैं, उनके जो अपने फ्रेंड्स के साथ जोक्स हैं वो मुझे समझ नहीं आते थे, एंड आई वुड बी लाइक यार ये क्या बोल रहे हैं, इनके बारबेक्यू का को वो कुछ और कहते हैं, इनको जो कपड़े मैंने ब्रिटिश एजुकेशन ली हुई है, मैं जो जंपर कह रही हूँ या हुडी कह रही हूँ, ये उसको स्वेटर कहते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट मैं इस चीज में यहाँ फंसी रहती कि आई नो बेटर, यहाँ मैं अडेप्ट करती हूँ, क्योंकि मेरा जो क्लाइंट है, मेरा जो कस्टमर है, मैंने उसकी लैंग्वेज बोलनी है। क्यों तुम लड़की हो, तुम्हारे नसीब में फेलियर है राबिया, तुम क्यों कर रही हो? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल विक्टिम कार्ड क्यों नहीं प्ले कर रही हो? देखो मेरा द पॉइंट है, मैं इस चीज को मैं इस चीज को बड़ा एम्फसिस करना चाह रहा हूँ। नंबर 1, फर्स्ट थिंग यू सेड दैट कि मैंने क्वेश्चन करते हुए नहीं डरती थी। नंबर 2, मैं किसी की कोई बात सुनते हुए नहीं डरती थी। आई हैड नो प्रॉब्लम कि अगर कोई मुझे आगे बताया कि यार ये तुमने गलत बोला है, ठीक है। ये तो जो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जाके एक कल्चर को अंडरस्टैंड करना और फिर उसके बाद उस कल्चर के अंदर जाके समाना, फिर उसके अंदर नरिश करना, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। मगर मुझे ये बताएं, how was it in Quetta? Then when you came to Lahore, what is something which pushed you? Was that something, ये वो चीजें हैं, like you pushed yourself or you had people who were like नहीं नादिया तुम करो राबिया, तुम्हें करना चाहिए। It's what? It's you driving it or people driving it for you? I would say a mix of both. ऐसे नहीं है, मेरे घर पे बहुत सपोर्ट भी मुझे मिली, हर वक्त एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलनी कि मेरे बच्चों को आता है and they are hard working and they're respectful. लेकिन क्रिटिसिज्म भी बहुत मिला, क्योंकि आप जब सीख रहे होते हो, आप जब अडेप्ट कर रहे होते हो और आप मिमिक भी कर रहे होते हो अपने से बेहतर चीज को या अपने से डिफरेंट चीज को देखकर, सो आप गलतियां भी करते हो। आप टू ट्राई टू फिट इन, आप बहुत सारी वो चीजें करते हो जो कि शायद आप करके ही सीखते हो, आप अपने पेरेंट्स की बातें समझ नहीं रहे होते। बट आई थिंक द ओनली थिंग दैट आई वुड से कि हमारी जो रिलीजन में हमारी एक क्यूरोसिटी का एस्पेक्ट है कि आप तफक्कुर करो, आप सोचो कि ये क्यों है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट आप मैं हम जहाँ पे कोई भी बंदा परफेक्ट तो है नहीं, ये तो हमारी पहली टीचिंग है।
हम Absolutely. इनकम्प्लीट है, हमने दूसरों के साथ कोलैबोरेट करना है, मेरे पास कुछ स्ट्रेंथ्स होंगी, आपके पास कुछ स्ट्रेंथ्स होंगी, हमने मिलके काम करना है. So having Got that it. curiosity and having that open mind, knowing how to listen, not going with the mindset कि I know या मुझे तो पहले ही Okay. पता है, और not going with the यार defense. देखो, मुझे तो पता है, देखो राबिया, मुझे तो पता है, ठीक है, तो मैं मैं आपको तो सच हर पन बताऊं, मौला आपकी हूँ, तो थोड़ी सी मेरे से ट्रिक पूछो, देखो, तो मेरे से डिजिटल मार्केटिंग पूछो, मैं बता दूंगा, टेक्नोलॉजी का कुछ पूछो, बता दूंगा, दीन के मुतालिक कुछ पूछो, बता दूंगा, तो मुझे कहोगे कनाडा का वीजा कैसे लगवाना है, बता दूंगा, मुझे तो सब कुछ पता है। नहीं, यार लेकिन मैं आपको ये सच चीज बात कैसे बताऊं, माइनस करनी है? हमारी मेन विमेन वॉर ना शुरू हो जाए यहाँ पे, लेकिन मैं एक सच बात बताऊं तो मुझे थोड़ा सा जो लड़कियों को एक डाउटफुल, एक हम डाउट में रहते हैं हमेशा, क्योंकि हमें हर बंदा कुछ बेहतर बता देता है और हमें कम ही पता होता है. आई थिंक दैट एक्चुअली हेल्प्ड मी, क्योंकि मैं ओके, गुड। में मतलब अगेन वी नीड टू लुक एट, हर चीज को विक्टिम नहीं बनाना ना, हमने उसमें से भी स्ट्रेंथ निकालनी. अगर आप कोविड देख लो, सो उसमें बहुत सारी चीजें हम पे आई, बट इट हैज ओपनड सच अ बिग रिमोट मार्केट की अपॉर्चुनिटी इन टुडेज वर्ल्ड, एब्सोल्युटली। कि मैं तो कनाडा कभी नहीं आती अगर मैं रिमोट पाकिस्तान में बैठ के काम कर सकती होती. लेकिन अगेन वो विक्टिम कार्ड प्ले कर लो आप, कि जी हमें तो हमेशा डाउट मिला है, हमें हमेशा क्रिटिसिज्म मिला है, हमें हमेशा एक सेकंड डिग्री समझा गया, या आप उससे लर्न करो, क्योंकि यू नो व्हाट, इट मेड मी रियली हम्बल. It showed गुड। me how to ओके। listen. It showed me to be open to other people's different opinions. And that's how I excelled. I use this as a strength instead of as a weakness. ओके, So I wouldn't see it as a weakness. Victimhood आप ठीक है हटा जी। ले. एक तो चीज आपने माइनस कर दी कि भाई मैं कोई विक्टिम विक्टिम नहीं हूँ, मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं करूंगी, ठीक है, मैं जो सीखना चाहती हूँ मैं सीखूंगी, वो चीजें जिनके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है मैं उनको आई लर्न देम, ठीक है, और लर्निंग के बाद आई विल इम्प्लीमेंट देम इन माय लाइफ। नाउ वन थिंग जो मैं जिस चीज के ऊपर आता हूँ अगेन, एक एक लड़की को या एक फीमेल को घर में हम ट्रेन करते हैं एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ, ठीक है, और बॉयज को ट्रेन करते हैं एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ, ठीक है, और वही एक चीज है जो उनकी पर्सनालिटी में यू कैन सी दैट डाउन द रोड वंस दे आर आउट इन द यूनिवर्सिटीज, वंस दे आर आउट देयर इन द प्रोफेशनल लाइफ. Now, what you have faced so far in your career, how do you see that getting implemented in your family, in your younger siblings, in your kids? What difference is going to be in their learnings, in their upbringing, as compared to what you have seen? That's a very good question. और उसमें मैं आपको ये बात तो कहूंगी, क्योंकि I had to fight a lot and I had to also make certain mistakes in order to learn and pave my pathway. लेकिन जो मेरे ठीक younger है, siblings को, because they moved to Lahore as a default, and then they got exposed to all those universities and even the North American side of the world as a default, ठीक है, तो उनके लिए opportunities बहुत खुली हैं. और अभी जो मैं current ठीक है, state of पाकिस्तानी students देखूं, irrespective of gender, men और women, girls और boys, देखिए ना, 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको सक्सेसफुल करते हैं. एक तो ठीक आपकी है, है नॉलेज बेस, या जिसको आप कह लो प्रोडक्ट, जिसके अंदर आपकी एक्चुअल मटेरियल इन्वॉल्व्ड है, व्हिच इज द टैक्टिकल. ओके, Then the second part is your service. How do you service people? How do you sell that product? अपनी strength को आप ओके, आगे present कैसे करते हो? And the third ओके, is marketing, which includes बाकी लोगों का opinion about you. It can be ओके, deliberate or it can be organic. लेकिन हम लोग पाकिस्तान ने ना पहला 35% तो अचीव कर लिया. हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमारी एजुकेशन, हमारा कंटेंट, जो जो आईटी फर्म्स में देखती हूँ, जो वो प्रोडक्ट बना देते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वी आर नॉट बिहाइंड एनीबडी इन द क्वालिटी, इन द एग्जैक्टली, द मटेरियल. बट द अदर 2 स्टेप्स, सर्विस में क्या है, मैं अगले से बात कैसे करती हूँ, मैं अगले की ओके, लैंग्वेज बेचती हूँ, मैं अगले पे रिसर्च करती हूँ, या मैं अपना ही बोलती रहती हूँ, लाइक अगले को समझ नहीं आ रहा, वो फ्रेंच में बात कर रहा है, मैं उनसे उर्दू में बात कर रही हूँ. हाउ विल वी बिल्ड दैट रिलेशनशिप? माय क्लाइंट इज टी मोबाइल, वो टेलीकॉम बनाते हैं, वो फोन की कंपनी है, या वो एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है. मैं उनके लिए यूनिफॉर्म बना रही हूँ, ठीक है, मेरा उनको कुछ नहीं पता टेक्सटाइल के बारे में. आपको पता है, मैं उनकी प्रेजेंटेशन से पहले उनकी वेबसाइट की 25 दफा रिव्यू करती थी.
वर्ड्स निकालती थी कि वो कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, व्हाट आर द वर्ड्स दैट दे रिलेट टू. दे टॉक अबाउट कनेक्ट, दे टॉक अबाउट बीइंग द फास्टेस्ट इन द मार्केट. मैं अपनी प्रेजेंटेशन में, अपने अपैरल में, अपने डिजाइन्स में उन चीजों को इनकॉर्पोरेट करती थी, बिकॉज दैट्स देयर लैंग्वेज. अगर आपने अपने क्लाइंट को स्टडी नहीं किया, आप उसकी जुबान ही नहीं बोल रहे, तो you have basically cut that bridge. The third and the most important is marketing. हमारा पाकिस्तान, to be honest, नॉर्थ अमेरिका के मुझे सबसे बड़ा शौक लगा था, लोगों को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में बनता क्या है. मैंने जब टूरिज्म के, मेरा जो बॉस था वो बहुत ज्यादा स्कीइंग करता होता था, और यहाँ पे जो हाईएस्ट स्कीइंग पीक है ना, वो हमारे से मे बी आई वुड से 1/4 होगी हाइट में. लेकिन जब मैंने दिखाई पाकिस्तान की स्कीइंग, जो ISPR और इधर उधर की प्रमोशनल थोड़ी सी वीडियोस बनी थी, तो उसको लगा, मुझसे पता है क्या क्वेश्चन पूछा होगा, इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल, बट ही सेड कि ये किसी को मतलब फोर्सफुली इन्होंने करा के वीडियो बनाई हुई है या ये एक्चुअली हो रहा है वहां पे. क्योंकि देखिए ना, जब भी पाकिस्तान में आप लैंड करेंगी तो एयरपोर्ट के बाहर एक बड़ा सा रेगिस्तान होगा. उस रेगिस्तान के अंदर 2 लंबी लंबी दाढ़ियों वाले लोग खड़े होंगे, उनके हाथ में गन्स होंगी, साथ ग्रेनेड्स होंगे. आप बाहर निकलेंगी तो आपको वो गोलियां बरसाना शुरू कर देंगे. दिस इज नॉट पाकिस्तान. पाकिस्तान इज डिफरेंट. वी डू एवरी सिंगल टाइप ऑफ थिंग है. हमारे पास अच्छा टूरिज्म भी है, हमारे पास अच्छा टैलेंट भी है, हमारे पास अच्छा टेक्सटाइल भी है, जो जारा के लिए भी काम करता है, जो अमेरिकन ईगल के लिए भी काम करता है, जो लीवाइस के लिए भी काम करता है. हमारे पास अच्छी इंडस्ट्री भी है. मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम IoT के बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं. फ्रॉम टेक्नोलॉजी, फ्रॉम द टेक्नोलॉजी साइड, वी नो हाउ टू इम्प्लीमेंट SAP, we know how to implement Oracle, we know how to utilize them, and we as Pakistanis can also work on any type of project with all the skills anyone requires, be that AI, ML, whatever. इतना रिसोर्सफुल ये एक जोन है, ये कल्चर इतना रिसोर्सफुल है. आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहने के चाह रही हैं कि यस, वी आर इक्विप्ड with all that talent, but we are not able to represent it the right way. 100%. और to be honest, that one gate, जैसे 3 गेट्स है ना आपका एक जादू का वो खोलने के लिए, एक गेट आपने खोल लिया, you've been able to unlock it, but आप बाकी 2 नहीं खोल पा रहे हो, so you will not be able to make that connection. आपको तो IT उसमें समझ आता होगा, you have to crack these 3 codes. And it's our responsibility now, जो हम लोग बाहर निकले हैं, आप जैसे लोग जिन्होंने अब इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम किया है, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, दैट्स वेरी फोकस्ड ऑन नॉलेज ओनली. वो उसकी डिलीवरी नहीं सिखाता, वो उसकी प्रेजेंटेशन नहीं सिखाता, वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सिखाता. हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को, हमारा इतना चीटिंग से बचने का पहले दिन से इतना माइंड में डला हुआ है कि वी डोंट लाइक टू कोलैबोरेट विद पीपल. हमें लगता है हमारा आइडिया चोरी हो जाएगा, हम लोग अकेले काम करना. और यहाँ पे ओपन बुक एग्जाम्स के कॉन्सेप्ट्स हैं. People like to do group assignments, people like to do group projects. Up, you need to think outside of that box, and वहां पे हमारी responsibility आती है. How can we unlock that code for our younger generation? हम उनको किस तरह कोच करें, हम उनके लिए किस तरह ये avenues खोलें जिसमें they learn to collaborate. अब आप मार्क जकरबर्ग वाली एग्जांपल ले लो. पाकिस्तानी आके बैठता है ना, फर्स्ट टाइम किसी भी आप नए, वो तो उसका आइडिया ही नहीं था, वो तो उसने आइडिया चोरी किया हुआ है. बट हम ये नहीं सोचते कि जिस बंदे का आइडिया था ना, वो उसको बेच नहीं सकता था. They needed to come together. मेरी जो स्ट्रेंथ होगी वो आपकी नहीं है, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो मेरी नहीं है. मैं अकेली छुपा के काम करती रहूंगी ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी. और ये चीज पावर ऑफ कोलैबोरेशन, ये चीज मैंने नॉर्थ अमेरिका से देखी है. दे डू नॉट थिंक स्मॉल. वो ये नहीं सोचते कि मेरे लिए इतने 3-4 लाख डॉलर की एनुअल सैलरी इज इनफ, मैंने क्या करना है लोगों के साथ बिग बनाने. यहाँ पे देर ऑल अबाउट वेरी कॉर्पोरेट, वेरी बिग नंबर्स. इनके टारगेट्स इतने बड़े होते हैं कि शुरू में मैं कहती थी, यार तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन बकवास कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है ना. लाइक क्या हो गया, ये कंपनी $5 मिलियन की कंपनी कैसे बन सकती है, ये $40 मिलियन की कंपनी कैसे बन सकती है. इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल. हो जाते हैं. मैं वो प्रोफेसर इसरार साहब को सुनती हूँ फॉर कुरान की, बहुत अच्छी डिटेल. वो कहते हैं जिसको आप अपना कैप बना लो, आप उससे आगे जाते ही नहीं हो. मतलब आप जिसको मान लो कि ये मेरा टारगेट है, सो आप तो उसके नीचे ही रहोगे ना. दैट्स योर सीलिंग. सो द हायर यू मेक योर सीलिंग, द हायर यू कैन गो.
Or तो at least, agar if you have hit that ceiling, just you know what, go outside that and make your next benchmark twice or thrice more than that. 100%, ठीक है? 100। अच्छा मुझे एक दो सवाल आ रहे हैं बड़े फजूल से, तो मुझे पता है। यार, what are going to be the first baby steps for anyone to step into a Canadian market? And by that, I'm saying is anyone from your domain, someone who is a textile designer, who is in any particular type of business जो आप कर रही हैं, and what kind of opportunities are there which can work, ठीक है? और तीसरा पार्ट इसका ये है कि उन opportunities को grab करने के लिए what are the basic skills apart from soft skills a person needs? जैसे ये आपने ये शो कर रहे हैं जिसमें देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि पीपल लिसन टू ईच अदर, उस तरह ना नेटवर्किंग इवेंट्स ऑनलाइन ना बहुत ज्यादा होने शुरू हो गए। पोस्ट कोविड एवरीथिंग इज Okay. रिमोट, यू कैन जॉइन ऑनलाइन। That is a very important stepping stone just to learn and absorb and understand their culture, their language. And आपके दिमाग में ideas आते हैं। पाकिस्तानी are very street smart. We are solution oriented individuals. हमने बचपन में अपने घरों में solutions निकाले हैं अपने problems को solve करने के लिए। But जब जुगाड़ू। हाँ बिल्कुल तो हम फॉरेन सोल्यूशन की तरफ भागते हैं, बट सबसे पहले हमने उनकी प्रॉब्लम को समझना है, जिसके लिए वी नीड टू स्टडी देम। So उसके लिए entering into their networking events, reading upon them, doing a lot of YouTube research, अपने क्लाइंट को, अपनी टारगेट मार्केट को अंडरस्टैंड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कनेडियन मार्केट में क्या चल रहा है, उनकी क्या, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट इतना गैप है, इनको इतना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए अभी कनाडा में, इट्स सच अ बिग नीड। और विद द प्रॉब्लम्स दैट द यूएस इज हैविंग विद चाइना, वो अपनी डिपेंडेंसी उनके ऊपर नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम दुनिया में बाकी जगहों पे वेंचर आउट करें। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं यूएस में जिनके लिए मैं फिलीपींस से हायरिंग करती हूँ, उन बच्चों को ट्रेन करती हूँ। अच्छा। डेटा एंट्री की जॉब्स करते हैं, उनकी टेक्निकल डिजाइन की जॉब करते हैं। और मैं आपको सच बात बताऊं, पाकिस्तानी मोर टैलेंटेड। सो हम लोग जो अभी तक बहुत ज्यादा फेवर और इन चीजों पे बहुत इंडिविजुअल्स की तरह काम कर रहे हैं, वी नीड टू हैव इस किस्म का मोबिलाइज्ड एफर्ट, जिसमें हम बच्चों की बकायदा ट्रेनिंग करें कि उन्हें कम्युनिकेट कैसे करना है अक्रॉस बॉर्डर, डिफरेंट टाइम जोन्स में, और उनके बेसिक स्किल्स। अगर नॉर्थ अमेरिका की जो सबसे बड़ी, अगर इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट, इज दे आर अबाउट प्रोसेसेस। क्योंकि ये किसी पे डिपेंडेंस नहीं चाहते, and they think big in terms of infrastructure. तो उसमें ना breaking every step down into processes is very important. And आप प्रोसेस को पकड़ लो और आप उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन डाल दो कि मैं खाली पीओ ऑर्डर आता है मेरा, उस ऑर्डर को मैं क्विक बुक्स में डालती हूँ, उसकी मैं एक इनवॉइस जनरेट करती हूँ परफॉर्मा, एंड मैं उसको वेंडर को भेज देती हूँ। 3 स्टेप्स हैं। आप सिर्फ वो 3 स्टेप्स में फास्टेस्ट बन जाओगे ना, you have a job here, you have a remote job here, which is paying all your bills. But we want to do everything. So we can't. मतलब we need to break things down into what my strength is. अगर मैं एक fast paced environment में काम नहीं कर सकती, मैं fumble करती हूँ stress में, then I don't need to do a job which requires you to do 100 quick tasks in a day. हमें अपनी strengths का नहीं पता. Okay. इसका मतलब ये है कि you divide and okay, this मैं उसको थोड़ा सा break down करता रहता हूँ for the younger audience, just for them to understand it. What this means is not necessarily you have to do anything and everything. ठीक है, there are few things जो आप सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं कर पा रहा, don't get disheartened. उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे स्किल सेट्स आपके सामने रखे हैं, यू कैन पिक एंड चूज। ठीक है, सो इफ आई एम नॉट एबल टू डू, अच्छा आई एम नॉट गुड एट सेल्स, कोई बात नहीं, मैं सेल्स नहीं करता, मैं प्रोक्यूरमेंट की कोई साइड देख लेता हूँ। मैं प्रोक्यूरमेंट मुझे समझ नहीं आती, ओके, मैं कोई डिलीवरी की साइड पे कोई चीज देख लेता हूँ। ठीक है, बट प्लीज बी कंसिस्टेंट। आप जो करना चाहते हैं, नॉट पॉसिबली you can be a perfectionist in it. Yeah, it cannot be. And इसमें At least try. And again, हम अपने बच्चों को blame इसलिए नहीं कर सकते because हमारी training ऐसी हुई है। We have always, as a child,
हमने एडमायर ही उन लोगों को किया जो जी टॉप पोजीशन पर है, सीईओ पे है, फलाना है, धमाका है। यहाँ पे आपकी स्किल को एडमायर करते हैं, आपकी पोजीशन को तो एडमायर भी नहीं करते। अब जो पहला मैंने आपको ये पॉइंट कहा है ना कि पहले हम आइडेंटिफाई करें मेरी वीकनेस और स्ट्रेंथ कहाँ है। दूसरी चीज है यहाँ पे आप जब एक रेज्यूमे भेज रहे हो ना एक रिमोट जॉब के लिए, जो कनाडा या यूएस, दे डोंट नो यू, आपको कुछ बैकग्राउंड पता, जो आपका रेज्यूमे है, जो आपकी लैंग्वेज है, जो आपने 10 लफ्ज उसमें लिखे हुए हैं, दे हैव टू हैव इतनी क्लैरिटी कि आप एग्जैक्टली आपकी स्ट्रेंथ क्या और आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। मैंने टू बी ऑनेस्ट खुद देखा है कि मैंने अपनी सीवी पे लिखा होगा कि आई एम अ सोर्सिंग स्पेशलिस्ट, कि मैं प्रोडक्ट को सोर्स करती हूँ, मैं प्रोक्योर करती हूँ, और मैं जिस जॉब पे अप्लाई कर रही हूँ ना वो सेल्स की है। और मैं कहूंगी कि क्योंकि मुझे तो डिजाइन आता है और मुझे फैशन आता है और मुझे तो पूरा प्रोसेस पता है, तो मैं ही कर सकती हूँ, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई टू कन्विंस देम दैट आई विल डू इट। एंड अगर मुझे खुदा ना खास्ता वो जॉब मिल भी जाएगी, दैट वुड बी सच अ डिजास्टर फॉर माय ओन सेल्फ, क्योंकि मैंने एक इमेज खराब कर दी ऑलरेडी एक पाकिस्तानी का कि जी दे कमिटेड, दे कैन डू इट, चलो पेपर पे नहीं भी नजर आ रहा, ट्रस्टेड देम एंड देन दे कुडंट। इतनी बड़ी ये कमिटमेंट है, इट्स लाइक एक निकाह नामे पे आप साइन करने से पहले आप एक एग्रीमेंट बनाते हो ना, योर वर्ड्स नीड टू रियली डिपिक्ट योर इंटेंशन। आप रेज्यूमे पे जो लिख रहे हो, दैट रियली नीड्स टू डिपिक्ट हु यू आर, व्हाट यू रियली वांट टू डू। द जॉब इज नॉट ओनली फॉर मनी, एक तो हमें ये माइंडसेट, वो हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी है। इट शुड बी अ मैच फॉर मी एज वेल। मैं भी उस जॉब में एक्सेल करूंगी तो मैं आगे बढ़ूंगी, मैं उस स्पेस में मेरी स्ट्रेंथ होगी तो मैं आगे बढ़ूंगी। सो अपने आप को सिर्फ एक कमोडिटी नहीं देखना ना, आपने अपनी भी ग्रोथ देखनी है थ्रू दैट पाथवे एंड क्लैरिटी। एक बात बताएं, सारी बातें ठीक है, आपने बड़े अच्छे काम किए हैं, आपने कर लिया K2 फतह और आपने कर लिया कनाडा भी फतह। मुझे ये बताएं, ये सब कुछ करने के दौरान पहला क्लाइंट, फर्स्ट इंटरेक्शन एंड फर्स्ट फेलियर, वो बड़ी मजे की चीज होती है। फर्स्ट तो क्या, अभी भी मेरे दे यूज्ड टू बी माइक्रोसॉफ्ट की, हम एक जैकेट कर रहे थे, उनकी एक MACH के नाम से चैंपियनशिप समथिंग होती है, एनुअल प्रोग्राम। इट्स लाइक अ देयर वर्जन ऑफ ओलंपिक्स, जिसमें वो अवार्ड सेरेमनी करते हैं व्हाट नॉट। उसकी एक जैकेट बनानी थी, अगेन कमिंग फ्रॉम अ पाकिस्तानी माइंडसेट कि जी मुझे तो पता है, क्लाइंट का टाइमलाइन बहुत टाइट था। मैंने कहा जी हाँ हम कर सकते हैं डिलीवर। तो हमने उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग कर दी कि जी हम जो कलर का अप्रूवल लेंगे ना वो हम वर्चुअली ले लेंगे, एंड वी हैव टूल्स, हम कलर उसमें एक देयर अ बॉक्स जिसमें आप कलर लाइट सेटिंग करके कलर अप्रूवल कर लेते हो। वो जो जैकेट उनकी बननी थी, उनको नेवी रंग में चाहिए थी, अब वो स्क्रीन्स की कैलिब्रेशन, वो हमारा जो एंड प्रोडक्ट बना वो पर्पल से रंग का बन गया। अब उन्होंने हमें अप्रूवल्स दिए हुए थे, that was और वो आपको इतना शेक करता है कि यार मतलब मेरा तो कॉन्फिडेंस इतना था कि मैं तो कर सकती हूँ, और माइक्रोसॉफ्ट के लिए कर रही थी, और बड़ी जबरदस्त एम्ब्रॉयडरी कराई, क्वालिटी बहुत अच्छी है, बटन्स पे इतना फोकस कर लिया, नेक लेबल बहुत अच्छा है, बट रंग ही गलत है उसका, वो उनका ब्रांड का कलर। बड़ी शर्मिंदगी हुई, जाहिर बात है। फिर उसी तरह आई थिंक और भी इस तरह की काफी चीजें हुई होंगी। अच्छा मुझे ये बताएं, हो गया, अच्छा चलिए, ये तो एक मसला हो गया। मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट तो निकला, उनके साथ बात हो गई, डिस्काउंट दे दिया, वो तो आपको पता है कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल आती है, कोई भी अपना लॉस तो नहीं कराता। बेच दिया ना, बेच दिया, लेकिन ये उसके बाद ये सुनना जरूरी है। नहीं, लेकिन ये लर्न नहीं किया कि मैं गलत चीज बेच सकती हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए। there's two learnings from it. एक आप ये लर्न करो कि यार गलती हो गई थी, बिक तो गया ना, मेरा क्या, I can do it again. But the other thing is I will never do it again. I need to be very, very honest with my timeline. I have to buffer my timeline every time. मैंने 2 हफ्ते एक्स्ट्रा डालने हैं, मैंने गलत कमिट नहीं करना। पहले से अगर मुझे क्लाइंट भी पुश करे ना कि इतना टाइमलाइन है कर लो, मैंने उसमें बफर डालना है कि you know what, things can go wrong. आपका माइंड चेंज हो सकता है, मेरा माइंड चेंज हो सकता है, चीजें डिले हो सकती हैं, कोविड आ सकता है। So one of the learnings जिसको मैं precisely इसमें अगर आप कहेंगे ठीक है, learn to say no if there is an issue and you know it's not going to happen right. Or always under commit and over deliver instead of over committing and under delivering.
ओके, ये तो हो गया। अब कैनेडियन जोन जो कि बड़ा डाइवर्स है, बड़ा मल्टी कल्चरल है, पाकिस्तानी मशरकी लड़की उस जोन के अंदर जाके सरवाइव भी कर रही है, बड़े ब्रांड्स के साथ बिजनेस भी कर रही है, काम भी कर रही है। व्हाट डू यू सी कि इफ यू वर इन पाकिस्तान, क्या आप यहाँ से बैठ के कर सकती थी? आई थिंक सो, इफ वही गिवन एन मतलब। अपॉर्चुनिटी, इफ हाँ, गिवन एन अपॉर्चुनिटी कि आप कभी भी कनाडा ना गई होती, तो एटलीस्ट आज की डेट में आप यहाँ पे क्या कर रही होती? कुछ तो कर ही रही होती। अच्छा, क्योंकि ये मेरा मसला था हमेशा कि मैं ना चैलेंजेस लेती थी। अब पाकिस्तान में भी जब मैंने इस तरह चाइना, थाईलैंड, टर्की वगैरह जाके बाइंग करनी शुरू की है ना अपने उन ब्रांड्स के लिए, ब्रेकआउट वगैरह, कोई और लड़की ओके, नहीं जानती। वो हमें ऐसे घूर के देख रहे होते थे कि ये कहाँ से आ गई है। और वो जनरली यहाँ भी जब मैं आई हूँ, मेरा समहाउ मेरी एज पता नहीं लगती, लोगों को लगता था यंग सी बच्ची सी है, ये कहाँ से हमें बताने आ गई है। So the first 2-3 months, I've always had to prove myself. I've always had to ओके, start from a very humble position. अपने से कभी deserving से भी कम पे शुरू करके कि you know what, my work will prove me. And then, to be honest, अभी जो मैंने last job छोड़ी, I was VP for the company. I was looking over all the operations. उनके US में office है, उनका Canada में office है. So, and mere se much older men and women were under me and they were reporting to me and they would give me all of their reports and analyze, and I would pick information and ओके, give decisions there. Lekin, I think consistency, persistence and अपने अंदर ये confidence बहुत ज़रूरी है कि I can do it. मुझे याद है मैंने जब यहाँ पे first job शुरू की है, जितने लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मुझे कोई फ़ोन कॉल से फ़ोबिया है। I hate making phone calls. मैं मतलब भाग जाऊँगी, कोई सॉल्यूशन निकाल लूँगी, कोई और जुगाड़ लगा लूँगी, मुझे फ़ोन कॉल ना करना पड़े। एंड जो मेरी फर्स्ट ओके, जॉब थी ना, इसी कंपनी में जिसकी मैं इवेंचुअली वीपी बन गई, आई जॉइन्ड देम एज़ अ कस्टमर सर्विस। जो डेस्क पे बंदा होता है ना, जिसको पहली कॉल आती है, वो कहती है, "हेलो, माय नेम इज़ राबिया, हाउ कैन आई हेल्प यू?" और मैं लिटरली तब ड्राइव नहीं करती होती थी, मैं स्काई ट्रेन पे जाती थी और मैं रिहर्स करती थी कि मैं कैसे कहूँगी, क्योंकि मुझे लगता था कि ओके, मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकलनी। लेकिन बिकॉज़ माय टारगेट वाज़ देयर, आई न्यू मैं स्टार्ट यहाँ से कर रही हूँ। आई केप्ट पुशिंग इन, आई केप्ट प्लेइंग विद नंबर्स। मैं अपने बॉस को जाके प्रपोज़ल्स दिखाती थी, हम इस तरह इधर से ट्वीक करेंगे, हमारा यहाँ से प्रॉफिट बढ़ेगा, हम यहाँ से कॉस्ट कम कर सकते हैं, हम इन कंट्रीज़ में जा सकते हैं। पाकिस्तान के जब मैंने उन्हें कहा कि वी कैन मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान, उनको था नहीं, 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 हमारा तो बड़ा बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, हम नहीं जा रहे। मैंने कहा आई विल गो फॉर यू, मैं उधर फैक्ट्री में बैठूँगी, उधर से आप लोगों को लाइव रिपोर्टिंग करूँगी, क्वालिटी दिखाऊँगी। नाइस, दैट्स हाउ वी स्टार्टेड एंड टी मोबाइल का हमारा 50% यूनिफ़ॉर्म पाकिस्तान में बन रहा था। अमेजिंग। सो इसका मतलब ये है, जो आपकी बातों से मुझे समझ आया है, बल्कि दो बातें समझ आई हैं और बड़ी अजीब सी हैं, एक अच्छी है, एक बुरी है, एक अच्छी खबर, एक बुरी खबर है। अच्छी खबर ये है कि हाँ, हम कर सकते हैं, हम पाकिस्तान में भी एक इंटरनेशनल ब्रांड के लिए एक हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। बुरी बात ये है कि हमारे सर के ऊपर एक डंडा होना चाहिए जो हमसे वो काम करवाए। 100%। ठीक है, ओके, ठीक और है। हम उसको अब एक निकालने की चीज, इतनी हाँ, कोशिशें करते हैं, उस एक डंडे को, बिकॉज़ मैं हाँ, अभी भी हाँ, पाकिस्तानी फैक्ट्रीज़ के साथ काम करती हूँ ना, तो उनको होता है, यार ये राबिया क्यों दरमियान में लगी हुई है? हम डायरेक्ट क्यों ना कर लें? मैं कहती हूँ बिल्कुल बिस्मिल्लाह करें। लेकिन जब उनकी 2 ईमेल्स पे आपस में बात नहीं समझ आ रही होती, यार आप टाइम डिफरेंस है, आप सो के उठे हो, आपका मूड ही खराब है। हम अपने इसमें पढ़ते हैं कि आप मेरे घर पे लड़ाई हुई भी होगी ना, तो मैं अपना कलर अप्रूवल भी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे माइंड के अंदर इस किस्म के केमिकल्स होंगे कि मुझे चीज़ें नज़र ही डिफरेंट आ रही हैं। सो अच्छी है, जस्ट सीइंग दैट कि वी नीड टू क्रिएट अ ब्रिज। अगर एक फिजिकल इतना डिस्टेंस है हज़ारों मील का, तो वहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग का भी डिफरेंस है। सो पीपल लाइक अस, पीपल लाइक यू, इफ वी कैन बी दैट ब्रिज और हम एक रिले रेस की तरह काम करें कि मैंने आपको पास किया, आपने आगे हाँ, पास, हर एक की स्ट्रेंथ लेके, दैट इज़ द ओनली वे टू सक्सीड। अगेन लाइक यू सेड, ओके, हम ब्रेक डाउन करें स्टेप्स में कि मेरा ये काम है, मैंने इतना करना है, अगले ने इतना करना है, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू टेक द होल बोट। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन, as a woman entrepreneur, have you been involved in the initiatives, organization that supports and empower women in business? Like if there is anything जहाँ पे हम, आप खुद तो कर रही हैं, but
how do you see that you can actually help assist people in Canada itself, but also in Pakistan? How can that happen? हम लोग मैं काफ़ी इन्वॉल्व्ड हूँ women associations में. Even here there's a Pakistani Canadian Women Association. Then 2 years ago with the Consulate Journal of Pakistan, we started this trade association called Pakistan Western Canada Trade Association, जिसमें हमारी president is also a female. She is very enthusiastic and passionate about how to bridge this gap between Pakistan and Canada and North America in general. लेकिन उसके एवेन्यू के थ्रू बहुत सारी ऐसी फाउंडेशंस हैं, जैसे सलमान सूफी फाउंडेशन है, देयर इज अ लॉट ऑफ दीज, देयर इज वसीला, जो बहुत ज्यादा विमेन को अब एज देयर स्ट्रेंथ यूज कर रहे हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं क्योंकि PIFD से हूँ, सो लॉट ऑफ टाइम्स मैंने जब हायरिंग करानी होती है अपने क्लाइंट्स की स्टाफिंग के लिए, तो girls shine, they are really really smart, they're humble, they like to listen. So वहां से वो एक bridge काफी बन रहा है remote employees का. और but again I think I would say बहुत ज्यादा और कुछ कर सकती हूँ. अभी तो बहुत ही starting Okay. phase में है, because Okay. I think initially You, आप you अपना struggle कर रहे होते हो, and now I think I'm in a position where I can, partake okay. in sharing You, that with others. your advice for the young entrepreneurs in Pakistan who are working somewhere around e-commerce or somewhere around fashion, textile, or something which is associated with your profession. What's your advice? How should they? कैसे काम करें? क्या पहले लोकल पे फोकस करें या राइट अवे उन स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करें जो कि ग्लोबली पीपल एडहेयर ऑल ऑफ दो स्टैंडर्ड्स, या इन बिटवीन एक मर्जर बनाएं कि यार थोड़ा सा वहां से सीखते हैं, थोड़ा सा अपना करते हैं, एक नॉर्मल अपना कल्चर भी देखते हैं और एक बाहर से भी लर्निंग लेते हैं और दोनों का एक हाइब्रिड बना के वी डू समथिंग. Through my experience, the first thing that I would say is find a mentor. मैं जब ओके. पाकिस्तान में थी, my boss in Breakout Crossroads, he was my mentor. He taught me so much. मुझे कहते थे, राबिया अगर ओके. तुम्हारे डेस्क पे काम है, तो इसका मतलब तुम सोच नहीं रही, तुम काम कर रही हो. So you always need to have a 30% window where you're thinking ahead. You're not just a workhorse. So having a mentor is very important. One in Pakistan, one with the international market, जहां आपने जाना है. आप इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जाना चाहते, so don't bother about it. जो आपकी मार्केट है, जिस पे आप जाना चाहते हैं, वहां पे आपको एक मेंटोर की बहुत जरूरत है, जहां से आप ओके. गाइडेंस लें. मेरी लैंग्वेज ठीक है, मैं ये communicate कर पा रही हूँ अपना मैसेज कि नहीं कर पा रही हूँ. When I came here, I had a mentor. My boss in my previous company was my mentor. He would coach me. He would give me like tips about यहाँ पे कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं. हमें मेंटोर चाहिए. हमें अपने रिलीजन में हमें बताया जाता है कि आप एक किसी को फॉलो करो. आप इट्स अ बिग वर्ल्ड आउट देयर. हमने खिड़की खोल के पहले थोड़ा सा देखना है, which is our mentor, and then we step out into the actual field. So अच्छा, अब हम आते हैं एक, अब हम थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बातों पे आते हैं. अब वो कंट्रोवर्शियल बातें हैं जिसका मैंने आपको बिल्कुल पहले नहीं बताया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे उसका कैंडिड रिस्पॉन्स लूँ. अच्छा जी, तो अ, go. हाँ, मुझे ये बताएं एकेडमिक्स कितने ज़रूरी हैं? हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट ज़रूरी है. डू यू थिंक? ज़रूरी है, बट आई वुड से 30%. इट्स द फर्स्ट लॉक जो मैंने आपको बात की है ना. ओके. 30% से ज़्यादा उसकी वेटेज नहीं है. मेरे पास बाकी 2 कीज़ नहीं होंगी, तो माय एकेडमिक्स विल टेक मी नोवेयर. हम लोग जो ओके, बहुत तो इसका ज़्यादा मतलब ये है. के पीछे और बहुत ज़्यादा ग्रेड्स के पीछे कॉम्पिटिटिव होते हैं, और हम लाइफ स्किल्स बिल्कुल नहीं सीखते पाकिस्तान में. सर्वाइव करना ऑन आवर ओन, लड़कों के लिए खाना बनाना, अपने लिए प्रोवाइड करना नहीं आता, और फिर यहाँ आके ना भी आएँ, हम बैलेंस नहीं कर पाते ना अपनी लाइफ में. बिकॉज़ टू बी ऑनेस्ट, आपको फ्रेंड्स भी चाहिए, आपको एक हेल्दी होम एनवायरनमेंट भी चाहिए, आपको अच्छा खाना भी चाहिए. सिर्फ़ आप पूरा दिन काम नहीं कर सकते. आप ये बाकी एवेन्यूज़ ऐसे. बैलेंस होंगे, तो आपका काम भी फ्लरिश करेगा. ओके, तो मुझे Is ये only बताएं कि one side of the equation. ये श्योर 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 प्लीज. अच्छा, ठीक है. मैं दोबारा आपसे एक और बात पूछता हूँ कि व्हाट, बल्कि मैं मुझे लगता है कि ऐसा होगा कि जब आपकी ये इतनी इस आपकी इस एंटरप्रेन्योरल जर्नी के अंदर ना
आपको किसी बंदे ने कभी कोई सपोर्ट नहीं करा, मर्द ने हमेशा आपको ज़लील किया होगा। आपको आपके पेरेंट्स ने भी, आपके अब्बा जी ने भी कहा होगा कि तुम नहीं कर सकती हो। आपके भाइयों ने भी यही कहा होगा कि नहीं राबिया तुम नहीं हो, और तुम्हारे इर्द-गिर्द जो आपके कलीग्स होंगे उन्होंने भी यही कहा होगा। ठीक है? क्योंकि बिल्कुल, ये इल्ज़ाम है हम पे। बिल्कुल भी नहीं। टू बी मैंने आपको अपने दोनों तीनों मेंटोर्स का बताया, दे आर मेन। एंड आई ओके, थिंक अगेन इट्स अबाउट हाउ यू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद देम। आप रिस्पेक्ट ओके। दोगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। कोई बंदा आपको यहाँ पे आपके साथ दुश्मनी लेके नहीं आया हुआ। मतलब ओके। कुछ पर्सनल नहीं है मेरा इधर आपके साथ। मैं आपको सपोर्ट दूँगी, आपको रिस्पेक्ट दूँगी, आप भी वही दोगे, नहीं दूँगी, आप भी नहीं दोगे। वी डोंट ओwe एनीथिंग टू एनीबॉडी। वी आर ऑल हियर टू मेरे वर्क। असा म मेरे मेरे उस्ताद मोहतरम हैं डॉक्टर आतिफ फरीद, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत डिफरेंट है। अच्छा जी, वो क्या कहते हैं? हाँ, अभी रिसेंटली भाभी ने, मैं जस्ट एडेड अ कमेंट, अभी रिसेंटली भाभी ने भी, क्योंकि डॉक्टर साहब खुद पीएचडी हैं, तो अभी तक भाभी ने भी रिसेंटली पीएचडी कंप्लीट की है इन एजुकेशन समथिंग। तो अभी घर में 2 पीएचडीज़ हैं। तो अंदाज़ा करें आप कि कितनी कितनी द सपोर्ट, आई एम ऑलवेज़ ऑफ एन ओपिनियन के we as men in Pakistan as a culture, on the cultural part, we spend very less time at our homes. ठीक है? We want to make sure that we enable our females जो हमारे घर में हैं, ठीक है? Not just कि बच्चों को कैसे रेज़ करना है, but also on the part कि how can we help them raise their own academics, raise their own learnings through whatever way possible. ठीक है? हाँ, ये हमारा फ़र्ज़ है। 100%, 100% ये है। और मैं आपको सच बात बताऊँ, बीइंग अ पाकिस्तानी, प्राउड पाकिस्तानी, मैंने भी बड़े अरसे विक्टिम कार्ड प्ले किया है, जिसमें मैं अपने हस्बैंड को कहती थी, तुम्हें हमेशा ज़्यादा पता है, तुम हर चीज़ में मुझे करेक्ट करा देते हो, मेरी तो चीज़ कभी उतनी ठीक हो ही नहीं सकती जितनी तुम्हारी ठीक होती है। हाँ, लेकिन अगेन आई हैव लर्न्ड, सो लाइक आई वुड यूज़ हिम एज़ माय काउंसलर, बिज़नेस एडवाइस, मैं बात कैसे करूँ, नाइस। रिज़्यूमे को कैसे ठीक करूँ, बिकॉज़ टू बी ऑनेस्ट दे हैव दैट डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपोज़र, दे हैव बीन आउट देयर मोर, सो दे कैन रियली, रियली सपोर्ट अस। एंड जो मैं ओके। एकेडमिक को भी कहती हूँ ना, जैसे यू से आपने उसको थोड़ा-सा फ़र्क लाइट में टच किया है, एकेडमिक्स आर वेरी इंपोर्टेंट। लाइक देयर इज़ नो वे अ वुमन और अ मैन, मैन तो खैर पढ़ ही लेते हैं, लेकिन ये नहीं कि वो पढ़े ही नहीं। बट हम जो हुँ, बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, व्हाट आई मेंट कि एकेडमिक्स इज़ द 30% ऑफ द की इज़, इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट, बट हम क्रेज़ी हो जाते हैं ना ग्रेड के पीछे या यूनिवर्सिटी के हुँ, नाम के पीछे। उन चीज़ों में वो उतनी हुँ, वैल्यू नहीं है जितनी एक्चुअली आपने उसमें से निकालना क्या है। आपने ओके। उसमें हार्ड वर्क के साथ क्या लर्न करना है। इट्स द So कंटेंट। इट्स नॉट द नेम ऑफ okay, द we डिग्री और द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी। from Quetta to Canada, क्या खूबसूरत टैगलाइन दी थी मीर भाई ने, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ये सुन के। एक और चीज़ राबिया, we have last 10 minutes, we will have people to, if they have any questions, they can write that, or inshallah ta'ala, we'll try to answer them based on the priority. What is something you are doing right now for those big brands? We want to hear that in the end because we now know who you are. We now know how you think. We now know how you have built things around you. ठीक है? But let's go pro now. ठीक है? You tell us who Rabia Dastagir is right at this point of time and what are you doing? सो मैंने अपनी फुल टाइम जॉब खत्म कर दी थी साल पहले, बिकॉज़ व्हाट आई Okay? रियलाइज्ड इज़ कि फैमिली और बच्चों को भी बहुत टाइम की ज़रूरत थी, जो कि वी वर लिविंग हियर अलोन एंड वी वर ऑब्वियसली कोई फैमिली एक्सटेंडेड नहीं है, सो माय किड्स नीडेड अ लॉट मोर टाइम एंड वो वीपी पोज़ीशन हैज़ इट्स ओन डिमांड्स। सो आई स्टार्टेड माय ओन कंसल्टेंसी फर्म। सो मेरे जो प्रीवियस I'm sorry. Toshiba Appa is asking कि where did you study in Quetta? Deacon House. Nice. आपा मैंने आपका So क्वेश्चन देखे बीच में करवाया। thank you. सो मैंने कंसल्टेंसी फर्म शुरू की और मैंने उसमें अब मेरे पुराने एम्प्लॉयर्स आर आल्सो माय क्लाइंट्स, बट फिर मैंने नए क्लाइंट्स काफ़ी सारे यूएस में लिए। सो करंटली यहाँ पे एक रेस्टोरेंट ब्रांड है कॉल्ड व्हाटरबर्गर, जिनकी कोई अराउंड ओके, 43,000 एम्प्लॉइज़ हैं। उनको कोई 1.5 लाख टी-शर्ट, 1.5 लाख एप्रन, 1.5 लाख हैट, 1.5 लाख पोलो, 1.5 लाख जैकेट हर साल का अपने एम्प्लॉइज़ के लिए चाहिए होता है। सो उसकी प्रोडक्शन करा रही हूँ, कुछ पाकिस्तान से, कुछ बांग्लादेश से, कुछ वियतनाम से।
फिर ठीक है. एक और ब्रांड है which is called Elevate, which is a ski brand, जिसके यहाँ पे Okay. gear बनता है, which is very technical. उनके हुडीज एंड टी शर्ट्स वगैरह पाकिस्तान से बन रहे हैं और कुछ प्रोडक्शन मेक्सिको से हो रही है, तो वो कोऑर्डिनेट करा रही हूँ. Very nice. Very nice. फिर आई हैव अनदर क्लाइंट जिसका मैं नाम नहीं ले सकती अगेन बिकॉज दीज बिग Sure. जो आपकी आईटी की फील्ड में जो है उनको बहुत ज्यादा इशू हो जाता है कि उनका नाम ना लिया जाए. Absolutely. उनका अभी जो रिटेल प्रोग्राम है वो अपने शॉप में, उनकी ना 2-3 स्टोर्स हैं यूएस में विच आर लाइक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जहाँ पे लोग ट्रक्स भर के आते हैं बिकॉज इट्स सच अ बिग नेम एंड लोग आके उसमें घूमते फिरते हैं. तो उनकी जो रिटेल डिजाइन की टी शर्ट्स होती हैं वो बनवा रही हूँ. फिर टेस्ला का जो एम्प्लॉई फ्लोर पे जो प्रोडक्शन हो रही होती है ना, वहाँ पे इट्स अ वेरी डार्क एनवायरनमेंट. मोस्ट ऑफ देयर मशीनरी इज ऑटोमेटेड, लेकिन वहाँ पे वो फोकलिफ्ट पे आदमी भी जा रहे होते हैं जो कि बेचारे यहाँ से एक चीज उठाई वहाँ से. तो दैट्स अ वेरी डार्क एनवायरनमेंट, और वहाँ पे उनको वो रिफ्लेक्टिव एप्रन वगैरह चाहिए होता है फॉर विजिबिलिटी, सो वो बनवा रही हूँ. सो इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू Amazing. क्रिएट दैट बैलेंस, जो मैंने आपको कहा था कि हमें अपनी लाइफ में बैलेंस करना होता है. सो मैं थोड़ा सा चीजों को माइंडफुली और स्लोली ले रही हूँ और नो भी बोल रही Got हूँ it. कुछ के. खूबसूरत. क्वेश्चन है जवेरिया का, how to choose a mentor when you are at unstable mind situation to grow? Again, like we said, we need to, हमें ना हेल्प मांगनी नहीं आती है एज ए नेशन. हमें लगता है कि देने वाला हाथ हमेशा सुपीरियर है और मांगने वाला हाथ या लेने वाला हाथ, हमने वो बचपन से सुना हुआ है और हमें लगता है कि इसमें कोई कमी है अगर मैं हेल्प मांग लूंगी. लेकिन टू बी ऑनेस्ट, इन दोज डार्केस्ट मोमेंट्स व्हेन योर माइंड इज नॉट स्टेबल, तभी हमें सबसे ज्यादा हेल्प चाहिए होती है. And getting Amazing. out and speaking, sharing your story with 1 or 2 safe spaces, हमने हर जगह अनाउंस नहीं करनी. वहीं से आपको अल्लाह ताला डेफिनेटली रास्ता खोलता है, आपको कनेक्शंस बनते हैं, आप लोगों के साथ नेटवर्क करते हो. अगेन, डरना नहीं है हेल्प मांगने से, कोई मसला नहीं है. अल्लाह ताला भेज रहा है वसीला, बेहतरीन. कोई इंसान हमें हेल्प नहीं कर रहा. वी नीड टू गेट आउट. हमें हमारा एम्प्लॉयर पैसे नहीं दे रहा होता, हमें अल्लाह उसके थ्रू दे रहा होता है. राज़िक ऊपर बैठा है. बिल्कुल. सो उसी तरह से किसी इंसान को आपने वसीले की तरह देखो, आप उसके साथ फेयर हो, और लेकिन आप उसको अपना खुदा ना बना लो, आप उसकी गलत बात पे एग्री ना करो. सो आपके रास्ते खुलते जाएंगे, आपको मेंटर्स डेफिनेटली मिलेंगे. अल्लाह से हम मांगते हैं, अल्लाह हमें लोग हमारी लाइफ में इस तरह ला के देता है कि इट्स अनबिलीवेबल. आई थिंक आवर फेथ, आवर रिलीजन इज सच अ बिग ब्लेसिंग कि हमारे आधे ज्यादा ना हमें वहां से गाइडेंस मिल रही है कांस्टेंट. वी जस्ट नीड टू फॉलो इट. Okay. Toshiba आपा कह रही कि there are more than 10,000 females in universities in Quetta. How can we assist, facilitate them to online work/business? इस एरिया में ऑब्वियसली आई एम मेकिंग एन ओपन अनाउंसमेंट. मुझे कोई चाहिए पाकिस्तानी एंटिटी जिसके साथ मैं कोलैबोरेट कर सकूं. मैंने दरमियान में सोचा था कि मैं इस दफा आऊंगी सो रजिस्टर कंपनी जिसमें, बिकॉज वी नीड टू ऑब्वियसली बिल्ड अ डेटाबेस ऑफ रेज्यूमेस, और फिर हम Got it. उसको मेरे थ्रू फनल कर सकते हैं ना. अभी मेरे पास वो पाकिस्तानी लिंक नहीं है. सो ऑन यूजिंग योर प्लेटफॉर्म आई एम Okay. मेकिंग एन ओपन अनाउंसमेंट. हूएवर वांट्स टू रीच आउट, बी दैट कनेक्शन विद मी इन पाकिस्तान, वी कैन build a bridge and we can open up these options for Pakistani female students. Wasim का question है कि I am not exactly sure, like, but some manufacturing names for school uniforms that you can recommend for foreign market customers like Europe. आप कंपनीज की बात कर रहे हैं या आप यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं? सो कंपनीज यही जनरली मेरा यूनिफॉर्म्स, जो यहाँ पे यूनिफॉर्म्स कोई भी डायरेक्टली नहीं खरीदता. मतलब अगर मैं टी मोबाइल का भी Okay. यूनिफॉर्म बना रही हूँ, टी मोबाइल मेरे पास डायरेक्टली नहीं आएगा. दे विल हायर अनदर एजेंसी विच विल बी देयर डिस्ट्रीब्यूटर, जो उनका हर प्रोडक्ट सोर्स करेगी, यूनिफॉर्म से लेके उनके जो की चेन्स बनते हैं, लैनियर्ड्स बनते हैं, या स्टोर का इंटीरियर बनता है, या कोई और हार्ड गुड्स आते हैं. सो यू नीड टू गो थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स. नॉर्थ अमेरिका का कल्चर, यू कैन नॉट वर्क डायरेक्ट विद द कंज्यूमर, यू हैव टू हैव अ डिस्ट्रीब्यूटर. बहुत सारी कंपनीज हैं, सिंटास है, there's Aramark, there's Sanmar, which are like multi-billion-dollar distributor companies. वो खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो दुनिया जहान से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फैक्ट्रीज से सोर्स करते हैं. वो यहाँ पे पिक पैक एंड Okay. शिप करते हैं अपने क्लाइंट के लिए, उसको ब्रांड करते हैं और आगे अपने कंज्यूमर को भेज देते हैं. सो अगेन, फर्स्ट Okay. स्टेप इज रिसर्चिंग ऑन योर मार्केट. आपकी मार्केट में कैसे काम होता है, गेटिंग इनटू द डिटेल. Toshiba आपा wants to connect.
Sure. ठीक है, तशरीबा wants to connect और आतिफ भाई आपके सवाल का जवाब यहीं पे आ रहा है कि मुदस्सिर वाले can you help Rabia Dastagir? So I guess the first connection is going to be with Toshiba Appa and Rabia, and rest inshallah ta'ala this is going to be the next future. Thank you so much Toshiba Appa. Acha ji, we have a question from Javeria. Women, especially mothers, want to become empower. What do you suggest for the women? Um, एज अ मदर टू बी ऑनेस्ट हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोगों को लगता है कि हम जो अपने बच्चों को बोल रहे हैं वो उससे लर्न कर रहे हैं, बट एक्चुअली बच्चे जो हम कर रहे होते हैं ना उससे लर्न कर रहे होते हैं। सो हम जब अपने एक मेरा अगर कोई पैशन ही नहीं होगा ना आउटसाइड ऑफ माई होम, कोई करियर या इवन फिलैंथ्रोपिक है, मनी माइंडेड नहीं भी है, तो मेरे बच्चों का भी नहीं होगा। वो यही लर्न करेंगे कि औरत का okay. तो होना ही नहीं होता पैशन। मैंने तो अपनी मदर को ही देखा था, उनका तो नहीं होता था। So they actually are constantly mimicking and learning from us. So having a healthy group of friends, having a passion, a hobby, and having a healthy home, we need to show them balance. We need to be an example for them. And that is the only way we can Sure. teach them. This is amazing. Rabia, I'm so delighted to have you here, and I can give you everyone kind of a disclaimer. This is the very first time in interacting ever. Or kal raat ko we just had an audio call. Thanks to me bhai for connecting us, and this is what we wanted. This is literally boys and girls. This is what I really wanted to show you. Okay, yaar. It Number one, please have faith in yourself. जो राबिया ने कहा है, keep on learning, be persistent. हार नहीं माननी, आगे बढ़ना है. अगर किसी चीज से अगर कभी गिरते भी हो, तो no problem, just get back. ठीक है, दोबारा उठो. अगर भाग नहीं सकते हो तो चलो. अगर चल नहीं सकते हो तो आहिस्ता चलो. आहिस्ता नहीं चल सकते तो ringo. But there is no way you can stop. There is no way. Rabia, 1 minute and give me your best thought, and inshallah ta'ala, then we'll say bye bye to everyone. Thank you so much. It was a pleasure. लेकिन again, have your faith intact. Allah Ta'ala ने हमारे लिए बहुत कुछ आगे रखा हुआ है. And to be honest, at this point in the world, in the economic situation, Pakistan is ripe. हम बिल्कुल victim नहीं है. हम बहुत एक अच्छी strategic placement and geographical location में है. We just need to open our minds. We need to take the opportunities which are out there. And inshallah, we have a long way to go. We have a beautiful future ahead. Inshallah. Rabia, thank you so much. It was a pleasure having you here. And down the road, anyone and everyone who has any questions, please do write in the comments. Rabia is can read them directly as well. And please, every single person who is actually here live, please be persistent. Gender classification has nothing to do with your skills. It has nothing to do with your learnings. It has nothing to do with your opportunities. It has nothing to do with your success or failures. So, Jazakallah khair. Once again, thank you, Rabia. See you next time very soon. Inshallah. Thank you. Hafiz. Allah Hafiz.